The United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. Let's talk about energy. What we need for the data, what we need for our food, what we have fought for. Energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look. And if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makkah, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up? It means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? आप इस देश को जब डेड इकोनॉमी कहते हैं तो आप हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते। आप अपमान करते हैं उस किसान का जो रिकॉर्ड 350 मिलियन टन अनाज उगा रहा है। आप अपमान करते हैं उस श्रमिक का जो आज संसद भवन से लेकर राम मंदिर तक का निर्माण कर रहा है। आप अपमान करते हैं उस वैज्ञानिक का जो चंद्रयान को शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचाया है। आप अपमान करते हैं उस स्टार्टअप फाउंडर का जो दुनिया भर में भारत की डंका बजा रहा है। और हम गर्व से कहते हैं कि अंडर द डिसाइसिव लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हम फ्रजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी नीतियां जो है वो बोल्ड रिफॉर्म्स पर आधारित है, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। इसी विकास का प्रमाण है कि हमारा बिहार भी आज आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है। यूपीए के कार्यकाल में मात्र 2.5 लाख करोड़ रुपए जो थे 10 साल में मिले थे।
ये दिखाता है कि बिहार और बिहारियां कभी इनकी प्राथमिकता थे ही नहीं, वो हमेशा बिहारियों को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करते थे। विपक्ष के साथ ही हमेशा एक नए शब्द का जो है उपयोग करते हैं, कहते हैं टैक्स टेररिज्म। और सबसे मजाक की बात यह है कि जिनके समय में टैक्स कलेक्शन सबसे लोएस्ट था और टेररिस्ट अटैक्स अपने चरम पर था, वो टैक्स टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लाना असली टैक्स टेररिज्म था और इसके बारे में ये कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहते। अब हम आते हैं इनके टैक्स सिस्टम की नीतियों पे। 1970-71 में 11 टैक्स स्लैब थे, जब 2 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स लगभग 85% थे और 10% का सरचार्ज था, यानी 100 रुपये कमाने वाला मात्र 6.5 रुपये बचाता था। आज जो टैक्स फ्री इनकम है उसका लिमिट बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दिया गया है, जो यूपीए के कार्यकाल से 6 गुना ज्यादा है। 2013-14 में टैक्स फ्री इनकम मात्र 16,667 रुपए थे और 2025 में ये 1 लाख रुपए प्रति माह हो गए हैं। असली रिफॉर्म्स तो ये है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में 6,38,596 करोड़ रुपए थे और आज वो बढ़कर 22.5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जो 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम भारत के टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो आज भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 19.6% है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है। आज भारत का टैक्स सिस्टम टैक्स टेररिज्म के लिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। सर फर्स्ट टाइमर हम लोग को ऐसे इतना कम मौका मिलता है, प्लीज सर 2 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। समय दे दीजिए सर। सर इतना विकास देख के विपक्ष का जो अलायंस है वो भी नहीं टिक पा रहा। बंगाल में तो विकास इतना, हमारी सरकार विकास कर दी गई है कि अलायंस को समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। बंगाल में इनका क्या हाश हो रहा वो तो हम लोग देखें। और बिहार में जो हाल इनका हुआ है, कांग्रेस पार्टी को कुछ साल बाद लालटेन लेकर के बिहार में खोजना पड़ेगा। महोदय ये विधेयक ग्रामीण उद्यमिता का भी एक नया सवेरा लेकर आया है। 2013-14 में कृषि का बजट मात्र 27,663 करोड़ रुपए थे, आज वो 5 गुना बढ़कर 1,40,528 करोड़ रुपए हो गए हैं। पर दुख की बात यह है कि इतने विकास के बाद भी ये अपने तुष्टीकरण और गंदी राजनीति के वजह से नाम की राजनीति करते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम का नाम लेते ही ये विचलित हो जाते हैं। सर 2 मिनट में हम वाइंड अप कर रहे हैं। थोड़ा समय और। हमारी सरकार जिस लगन, जिस सेवा भाव और जिस दृढ़ निश्चय से काम करती है उसे हम राम राज्य कहते हैं। राम राज्य सिर्फ विपक्ष को लगता है कि राम राज्य एक धार्मिक शब्द है, पर वो जानते ही नहीं कि राम राज्य पूजा की पद्धति नहीं बल्कि शासन की प्रतिबद्धता है। राम राज्य का अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना। सर 1 मिनट, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना। सर आप बार बार मेरा, अभी हम बस 2 मिनट में इसको समाप्त कर रहे हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की परिभाषा दी थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज कहूँ नहीं व्यापा। एक ऐसे व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जहाँ किसी भी इंसान को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक तनाव नहीं हो। ये विधेयक प्रमाण है कि हमारी सरकार नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करती है।